شدید دھند نے پھر شہر کو لپیٹ میں لے لیا۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر جہازوں کی آمد و رفت معطل، جبکہ حد نگاہ 5 میٹر ہونے پر لاہور سے پنڈی بھٹیاں تک موٹر وے کو بند کر دیا گیا۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی کی انوکھی منطق، 1 ماہ بعد حوضری یونٹس کو ٹیکسٹائل سیکٹر سے نکال دیا۔ لاہور سمیت 6 ریجنز میں گیس فراہمی کی معطلی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ ادھر اوگرا سے گیس قیمتوں میں 96 روپے 98 پیسے فی MMBTU اضافے کی درخواست کر دی۔ چیئرمین اوگرا کہتے ہیں گھریلو صارفین پر بوجھ نہیں پڑے گا۔ آزادی چوک پر سگنل فری منصوبے کے لیے آپریشن بغیر نوٹس اسنادی کے خلاف شہریوں کا احتجاج، آپریشن ملتوی کر دیا گیا۔ ادھر 5 کنال اراضی دینے کے باوجود لیڈی ویلنگٹن ہسپتال پھر منصوبے کی زد میں آ گیا۔ کچن اور عمارت گرائی جائے گی، متبادل کچن کی تعمیر کی جائے گی۔ سیپا کا ہسپتال انتظامیہ سے وعدہ۔ سلمان سلطان رانا SSP کاؤنٹر ٹیررزم اور عمران یعقوب SP انویسٹیگیشن سٹی تعینات۔ ادھر شہر کے 8 SHOs تبدیل کر دیے گئے۔ کامران زمان شاد باغ، رانا ارہم طبی سٹی، چودھری اشتیاق باغبان پورہ، عاصم رفیع لوئر مال، عابد رشید اسلام پورہ، محمد شبیر رنگ محل تعینات، جبکہ مقصود گجر رفیع اللہ کو پولیس لائنز بھجوا دیا گیا۔ اندرون لاہور سے ملنے والی قدیم تجوری پر محکمہ اوقاف نے بھی حق جتلا دیا۔ سیکرٹری اوقاف نے تجوری کے حصول کے لیے DG وارڈ سٹی کو خط لکھ دیا۔ کھیل کے میدان کو وائمیکس تھیٹر میں تبدیل کرنے کے خلاف توہین عدالت کی درخواست۔ ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ پنجاب، DCO لاہور، DG LDA اور دیگر فریقین سے جواب طلب کر لیا۔ فتح میرج ہال ہربنسپورہ کے مالک حاجی فتح محمد کو ہر جانا درخواست گزار کو شادی میں ناقص کھانا فراہم کرنے پر صارف عدالت نے 47,500 روپے فوری ادا کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالتی حکم عدولی پر سیشن عدالت سے سب انسپیکٹرز عبدالاحد، سلطان احمد، محمد رمضان، عباس، ارشاد احمد، ذوالفقار علی اور محمد افضل کے وارنٹ گرفتاری، جبکہ 3 SHOs کی تنخواہیں بند کرنے کا حکم۔ ادھر احتساب عدالت نے رؤف انٹرنیشنل کمپنی کے ڈائریکٹر کی بہن ڈاکٹر شاہینہ ہمایوں کو 4 سال 7 ماہ اور ڈاکٹر رشید کو 5 سال قید کی سزا سنا دی۔ سروس اسٹرکچر پر عمل درآمد، نہ طبی آلات ٹھیک ہو سکے۔ پنجاب ڈینٹل ہسپتال میں ینگ ڈاکٹر سراپا احتجاج۔ ادھر کیروی کوچ کینٹ کے تاجروں کا مارکیٹ سے متصل رہائشی کالونیوں کے راستے بند کیے جانے کے خلاف شدید احتجاج۔ چودھری پرویز الہی کی ظہور الہی روڈ پر پریس کانفرنس۔ مسلم لیگ کا پنجاب کے صدر کا کہنا ہے کہ پنجاب اسمبلی کی نئی عمارت استعمال میں نہیں لائی جا رہی، قومی اثاثے سیاست کی بھینٹ نہیں چڑھنے چاہیے۔ پنجاب یونیورسٹی اکیڈمک اسٹاف ایسوسی ایشن انتخابات میں ٹیچر اسٹرنٹ کا کلین سویپ۔ ڈاکٹر احسان شریف صدر، فہیم آفتاب، عابد حسین چودھری نائب صدر، جبکہ جاوید سمیع جنرل سیکرٹری منتخب۔ پنجاب یونیورسٹی میں بابا صحافت مولانا ظفر علی خان کے 141ویں یوم ولادت کے حوالے سے تقریب۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی خصوصی شرکت۔ ادھر گورنر سے سرافا جیم اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین احمد علی چودھری کی ملاقات۔ لمس میں یونائٹڈ نیشن کے ایگزیکٹو سیکرٹری ڈاکٹر نورلین کا خصوصی لیکچر، وائس چانسلر سہیل نقوی سمیت اساتذہ اور طلباء کی شرکت۔ فردوس مارکیٹ چوک میں ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بننے والے علی حسین قصدباش کی نماز جنازہ سرور روڈ پر ادا کر دی گئی۔ ادھر کمشنر ان لینڈ ریونیو مرزا ندیم منور بیگ کی نماز جنازہ گلبرگ میں ادا۔ چیف کمشنر LTU مصطفیٰ اشرف سمیت افسران کی شرکت۔ الحمدہ میں خانہ فیرن کے ذریعے تمام محفل میلاد کا انعقاد۔ صوبائی وزیر اوقاف عطا مانیکا، علماء کرام اور دانشوروں کی شرکت، جبکہ جوہر ٹاؤن میں مولانا اکبر ذاکر میموریل سوسائٹی تحریک وحدت اسلامی کے ذریعے تمام رحمت للعالمین کانفرنس کا انعقاد۔ صدر بازار میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بزم غوثیہ کے زیر اہتمام کیک کاٹنے کی تقریب۔ ادھر باسا ہیڈ آفس اور PHA کے زیر اہتمام گلشن اقبال پارک میں محافل انعقاد کا اہتمام۔ وفاقی وزیر برجیت طاہر، رانا تنویر، MDC ناردرن عارف حمید، جنید جمشید، سینئر صحافی فہد حسین، استرصاف لاہور پہنچ گئے۔ کورین وقت، ٹرکش ایئر لائنز عملے اور ہائی نون لیبارٹری کے ملازمین کے وقت میں آمد، جبکہ پائلٹ ایسوسی ایشن کے صدر کیپٹن سہیل بلوچ بھی لاہور پہنچ گئے۔
हशमपीस पोलो टूर्नामेंट में गार्ड ग्रुप ने हमजा मौज खान की हैट्रिक की बदौलत आर्मी ग्रीन को शिकस्त दे दी, जबकि कैडेट कॉलेज स्पोर्ट्स डे पर गर्ल्स क्रिकेट मैच में यूनिवर्सिटी 11 ने बोर्ड 11 को 88 रन से हरा दिया। और पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस और कोरियन एनजीओ हाई फ्रेंड के ताउन से पाक कोरियन कल्चरल फेस्टिवल का इनेकाद, दोनों ममालिक के तलबा तालिबात की शानदार सकाफती परफॉर्मेंस। शामदीद बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे शहर के मौसम के हवाले से। मौसम की शिद्दत के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे कि धुंध में शिद्दत के बायस अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को परवाजों की आमद और रफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। एक बार फिर इस अहम खबर से आपको आगाह करें, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को धुंध में ज्यादती के बायस परवाजों की आमद और रफ्त के लिए बंद कर दिया गया। इस बारे में मजीद बात करेंगे रिफत अब्बास से। जी रिफत, बताएगा कि अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परवाजों को मुअत्तल कर दिया गया है, क्या कहना है सिविल एविएशन इंतजामिया का और मुसाफिरों को क्या आगाह कर दिया गया है? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पर, जहाँ पर शदीद धुंध की वजह से रात के 9 बजे एयरपोर्ट हर किस्म की परवाज़ों के लिए बंद कर दिया गया है और जब तक धुंध खत्म नहीं हो जाती ये एयरपोर्ट जो है बंद रहेगा हर किस्म की परवाज़ों के लिए। इस वक्त जो परवाज़ें जिन्होंने यहाँ पर लैंड करना था उनको दूसरे शहरों की तरफ उनका रुख मोड़ा जा रहा है और उनको वहाँ पर लैंड कराया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर लाहौर एयरपोर्ट पर इस वक्त शदीद धुंध है। न सिर्फ लाहौर एयरपोर्ट पर बल्कि एयरपोर्ट से इर्द गिर्द के इलाके जो हैं वहाँ भी वो भी शदीद धुंध की लपेट में है और हद नजर जो है लाहौर एयरपोर्ट पर भी और इर्द गिर्द के इलाकों में भी इस वक्त सिफर हो चुका है, जिसकी वजह से परवाजों का शेड्यूल जो है वो शदीद मुतासर हुआ है। गुज़श्ता रात भी रात के 2 बजे से लेकर और सुबह 11 बजे तक जो है एयरपोर्ट जो है बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से 40 से ज्यादा परवाजें जो उनका शेड्यूल जो है वो मुतासर हुआ था। अभी भी जो है जितनी परवाजें आने और जाने वाली हैं अंदरून और बैरून मुल्क की तमाम परवाजें जो हैं इस वक्त शदीद मुतासिर हैं, उनका शेड्यूल मुतासर है। जिनका जो आने वाली परवाजें हैं उनका रुख दूसरे शहरों की तरफ दूसरे एयरपोर्ट्स की तरफ मोड़ा जा रहा है, जबकि यहाँ पर जो है अपने अजीज रिश्तेदारों को लेने के लिए आने के लिए उनकी तादाद भी बहुत ज्यादा यहाँ पर मौजूद है, लेकिन उनको कोई गाइड नहीं किया जा रहा है कि एयरपोर्ट बंद हो चुका है। जो यहाँ पे मालूमात का जो बोर्ड है उस पर जो शेड्यूल है परवाजों का वो उसी तरह यहाँ पर लिखा हुआ है, जिससे उनको कुछ पता नहीं चल रहा है कि फ्लाइट आनी है या नहीं आनी है या एयरपोर्ट बंद है या नहीं बंद है। जो चेक इन इस वक्त जो है चेक इन भी जारी है, जो लोग यहाँ से एयरपोर्ट से आ रहे हैं दूसरे मुल्कों दूसरे शहरों को जाने के लिए उनकी चेक इन भी जारी है। उनको भी ये नहीं बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट बंद हो चुका है, जो कि सुबह तक बंद रहेगा जब तक ये धुंध खत्म नहीं हो जाती। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बिल्कुल इस वक्त जो है धुंध की वजह से हद नजर जो है सिफर हो चुका है और जिसकी वजह से परवाजों का जो है शेड्यूल जो है आने। बहुत शुक्रिया रिफत अब्बास, हमें अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, रिफत अब्बास मौजूद थे, आगाह कर रहे थे अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर धुंध की सूरत हाल के हवाले से। और अब बात करेंगे मोटरवे की, जहां पर हद निगाह 5 मीटर होने पर लाहौर से पिंडी भटिया तक मोटरवे को भी बंद कर दिया गया। इरफान मलिक इस वक्त मोटरवे पर मौजूद हैं, उनसे मजीद अपडेट्स लेंगे। इरफान मलिक ही बताएगा कि मोटरवे पर धुंध की क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी रेहान, जैसा कि आपको मालूम है कि शहर ने इस वक्त धुंध की चादर ओढ़ ली है और इसी धुंध के बायस जो है मोटरवे ये आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। लाहौर से पिंडी भटिया तक जो मोटरवे है वो हद निगाह जो सिफर होने की वजह से बंद है और इस पर आम ट्रैफिक का जो दाखिला ममनू कर दिया गया है। इस वक्त हम मोटरवे जो ठोकर चौक में मौजूद हैं और यहाँ पे इंटरचेंज के ऊपर से जो गाड़ियाँ मोटरवे की तरफ जा रही हैं उनको यहाँ से काला शाकों की तरफ निकाला जा रहा है और ट्रैफिक पुलिस के और जो मोटरवे पुलिस के एहलकार हैं वो यहाँ पे मौजूद है और उनका शहरियों को यही मशवरा है कि जो अपनी फोग लाइट्स जो हैं उसको ऑन रखें और सफर के लिए जीटी रोड का इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ मोटरवे पुलिस का ये भी कहना था कि क्योंकि जो शदीद धुंध है और इसके बायस लाहौर से पिंडी भटिया तक मोटरवे को बंद किया गया है, जबकि इससे आगे जो है वो मोटरवे जो आम ट्रैफिक के लिए खुला है, क्योंकि वहाँ पे अभी धुंध काफ़ी कम है और वहाँ पे हद निगाह अभी सिफर नहीं हुई। ताहम उनका ये भी कहना था कि महकमा मौसमियात से उन्हें इत्तला दी है कि मजीद जो धुंध है वो इसके बढ़ने का इम्कान है और इस वजह से मोटरवे जब तक धुंध रहेगी उस वक्त तक बंद रहेगी। जी बहुत शुक्रिया इरफान मलिक, आप मोटरवे पर मौजूद थे और वहां पर धुंध की सूरत हाल के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे।
दिन भर छाए रहने वाले बादलों ने मौसम फिर ठंडा कर दिया। शाम के बाद धुंध भी पड़ना शुरू हो गई। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक रात और सुबह को धुंध में शिद्दत रहेगी, ताहम हल्की बारिश भी हो सकती है। शहर में जुमेरात की सुबह धुंध के साथ मतला आबर आलूद रहा और दिन भर बादल छाए रहने से सर्दी बढ़ गई। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 13.8 डिग्री जबकि कम से कम 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सुबह के औकात में हवा में नमी का तनासुब 97 जबकि शाम के वक्त 71% रहा। शाम होते ही धुंध पड़ना शुरू हो गई और वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी शिद्दत में इजाफा हो। गैस की कीमतों में इजाफे का फैसला। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने ओबरा से 96 रुपये 98 पैसे फी MMB BTU इजाफे की दरख्वास्त कर दी है। चेयरमैन ओबरा सईद अहमद खान का कहना है कि हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक घरेलू सारिफीन पर बोझ नहीं पड़ेगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। रॉयल कॉन्टिनेंटल होटल में होने वाली ओबरा की अवामी समात चेयरमैन ओबरा सईद अहमद खान की जेर सदारत हुई, जिसमें वाइस चेयरमैन ओबरा साबिर हुसैन, मेंबर ओबरा आमिर नसीम, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी आमिर तोफैल समेत दीगर ने शिरकत की। समात के दौरान लीगल कंसल्टेंट मिर्जा महमूद ने प्रेजेंटेशन देते हुए कहा कि 7% इजाफे से सार्फिन पर कम बोझ पड़ेगा, लेकिन इस इजाफे से कंपनी को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि कीमतों में इजाफा ना किया गया तो करोड़ों सार्फिन का मुस्तकबिल दाव पर लग जाएगा। समात के दौरान मिर्जा महमूद ने कहा कि बिजली की कीमतों में 70% तक इजाफा किया जा चुका है, लेकिन SNGPL के साथ सोतेलो जैसा सलूक हो रहा है। समात के बाद सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन ओबरा सईद अहमद खान ने कहा कि कीमतों में इजाफे से हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक घरेलू सार्फिन पर बोझ नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि CNG स्टेशन को कनेक्शन सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से जारी NOC के मुताबिक दिए गए थे। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की अनोखी मंतक। 1 माह बाद ही लाहौर समेत 4 रीजन्स के फौजी यूनिट्स को गैस फराहमी मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने 18 दिसंबर को हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत पर टेक्सटाइल सेक्टर को 24 में से 6 घंटे गैस फराहमी शुरू की। ताहम सर्दी की शिद्दत में इजाफे की वजह से सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने अचानक अपना फैसला बदलते हुए 15 जनवरी को एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके तहत हौजरी यूनिट्स को गैस फराहमी बंद कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर, फैसलाबाद, बहावलपुर, मुल्तान, शेखुपुरा और साहिवाल रीजन्स के जनरल मैनेजर्स को खिलाफ वर्जी करने वाले सारिफिन के कनेक्शन मुनक़ता करने, जबकि गैस हासिल करने वाले टेक्सटाइल स्पिनिंग और प्रोसेसिंग यूनिट्स की तफसीलात भी तलब की गई हैं। मुस्लिम क़ाफ करानुमा चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि पंजाब हुकूमत ने मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत का आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। जो हुक्मरान घरों में बिजली और गैस नहीं दे सकते, उन पर कौन एतबार करेगा। अपनी रिहाइशगाह पर मुस्लिम क़ाफ पंजाब के जनरल सेक्रेटरी चौधरी ज़हीरुद्दीन और नायब सदर मोहम्मद बिशारत आजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि पंजाब हुकूमत के MOU साइन करने के आलमी रिकॉर्ड कायम करने से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। नाकिस पॉलिसियों के बाद सरमायाकार पंजाब नहीं आ रहे। जो हुक्मरान घरों में बिजली और गैस नहीं दे सकते, उन पर कौन एतमाद करेगा। आजादी चौक तोसी मंसूबे के लिए जमीन वागुजार करवाने के ऑपरेशन पर रिहायशियों का एहतजाज। LDA को ऑपरेशन करने से रोक दिया। अहले इलाका का ये कहना है कि हुकूमत अगर इमारतें गिरा रही है तो इसका मुनासिब मुआवजा भी अदा करे। तफसीलात बता रहे हैं उमर असलम इस रिपोर्ट में। आजादी चौक तोसी मंसूबे के तहत LDA ने जमीन वागुजार करवाने के लिए आजादी चौक पर ऑपरेशन करना चाहा तो मकामी रिहायशियों ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए टायरों को आग लगाकर सड़क को ब्लॉक कर दिया, जबकि दौरान एहतजाज कुछ देर के लिए मेट्रो बस सर्विस को भी मुअत्तल कर दिया गया। आजादी चौक तोसी मंसूबे के मुतासरीन का कहना है कि वो यहाँ पर अरसा दराज से रिहाइश पजीर है। हुकूमत पहले घरों और दुकानों का मुतबादिल फराहम करे। उनका कहना है कि गरीब आदमी के लिए दाल रोटी पूरी करना मुश्किल है और जब उसे छत ही छीन ली जाए वो कहाँ जाए, जबकि LDA इंतजामिया बगैर किसी नोटिस के बिल्डिंग्स गिराने आ गई है। रोजगार सारे बच्चे रुल जाएंगे, गरीबों के। अमीर आदमी खा सकते हैं रोटी, गरीबों के बच्चे नहीं खा सकेंगे। मैं सही कह रहा हूँ आपको। जोर अपील है कि हमें जो है ना या तो मुतबादिल घर दिए जाए या हमें इतना पैसा दिया जाए ताकि ये मकान गिरवी ले सकें। यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ हम लोग, हमारे माँ बाप यहाँ पैदा हुए और यहाँ पर उन्होंने एक जिंदगी का हिस्सा गुजारा। कहाँ जाए? 10-15 हजार में तो मकान मिलता है, फिर खाएंगे क्या। सूबाई वजीर खुराक बिलाल यासीन ने भी आजादी चौक का दौरा किया और कहा कि आजादी चौक फ्लाई ओवर से अवाम को फायदा होगा, जिसके तहत ये मंसूबा शुरू किया गया है, जबकि हुकूमत कवायद ज़वाबित के मुताबिक मुतासरीन को पैसे देगी। हम उनके पास आए हैं, उनको प्यार किया है, उनके साथ बैठ के बात की है। ये बात चली कहाँ पे है, ये काम तो चलना है। इसमें ये उनको कहा है कि जी ये आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी।
عوام کی فلاح و بہبود کے لیے منصوبے ضرور بننے چاہیے، تاہم اس حوالے سے پہلے ایسی پلاننگ کر لینی چاہیے جس سے کسی کے سر کی چھت اور ذریعہ معاش نہ چھینا جائے۔ کیمرامین علی نعمان کے ساتھ عمر اسلم، سٹی 42۔ لیڈی ولنگٹن ہسپتال بھی آزادی چوک توسیع منصوبے کی زد میں آ گیا۔ چوک سے ملحقہ ہسپتال کا کچن اور عمارت کو مسمار کیا جائے گا، ایل ڈی نے ہسپتال انتظامیہ کو آگاہ کر دیا۔ آزادی چوک توسیع منصوبے کے لیے جہاں راوی روڈ کی دیگر عمارتیں مسمار ہوں گی، وہیں دوسری طور پر لیڈی ولنگٹن ہسپتال بھی منصوبے کی زد میں آ گیا ہے۔ ایل ڈی کے انجینئر کی جانب سے ہسپتال انتظامیہ کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ لیڈی ولنگٹن ہسپتال کے آزادی چوک کے کونے پر واقع عمارت کو جزوی طور پر مسمار کیا جائے گا، جبکہ ہسپتال کے کچن کی عمارت مکمل طور پر منصوبے کا حصہ بنے گی۔ مغل پورہ ڈرائی پورٹ کی رونقیں پھر سے لوٹ آئیں۔ 6 سال بعد ریلوے کی پہلی کارگو ٹرین کا ڈرائی پورٹ پہنچنے پر شاندار استقبال، پھول نچھاور کر کے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے گئے۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں رضوان نقوی کی یہ رپورٹ۔ 6 سال کے تعطل کے بعد ڈرائی پورٹ آنے والی کارگو ٹرین 40 کنٹینرز کے ہمراہ 980 ٹن سامان کراچی سے لاہور لائی۔ مغل پورہ ڈرائی پورٹ پہنچنے پر ٹرین کا دلہن کی طرح استقبال کیا گیا۔ چیف ٹریفک مینیجر ریلوے الطاف حسین، کسٹمز ایجنٹس ایسوسی ایشن کے چیئرمین محمد امجد چودھری، صدر آغا افتخار، مرزا قاسم بیگ، مسعود عالم بٹ، اسد منظور، ساجد عزیز میر، چودھری ارشد، فاروق حسن، ظفر اقبال، شیخ اجاز رشید، میاں بشیر اور ریاض احمد سمیت دیگر کسٹمز ایجنٹس بھی ٹرین کا استقبال کرنے کے لیے موجود تھے۔ کسٹم ایجنٹس نے ٹرین کی آمد پر ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے اور ایک دوسرے پر پھول بھی نچھاور کیے۔ چیف ٹریفک مینیجر الطاف حسین نے بتایا کہ بند کی گئی تمام کارگو ٹرینوں کو دوبارہ چلایا جائے گا۔ چیئرمین کسٹم ایجنٹس ایسوسی ایشن امجد چودھری نے کہا کہ کراچی سے کارگو ٹرینوں کی آمد و رفت بحال ہونے سے نہ صرف صنعت کاروں کو فائدہ ہوگا بلکہ حکومت کو بھی کروڑوں روپے کی آمدن ہوگی۔ امجد چودھری نے کہا کہ ٹرینیں بحال ہونے سے 6000 خاندانوں کو روزگار ملے گا۔ جب انڈسٹری کا کام ریل پہ آئے گا تو انڈسٹری بھی بہتر چلے گی، لوگوں کو چیزیں سستی بھی ملیں گی، اور یہاں پہ 5 سے 6000 خاندان پل رہا ہے ڈرائی پورٹ پہ، ان کو روزگار ملے گا، کسٹم ڈیوٹی میں اضافہ ہوگا، NFC ایوارڈ میں اضافہ ہوگا۔ ہمیں ہیلپ ملے گی اکنامک ڈیولپمنٹ میں، اور ریلوے کو اس میں سے کافی ارننگ ہوگی۔ 6 سال بعد کراچی سے مغل پورہ ڈرائی پورٹ پہنچنے والی ٹرین کا استقبال کرنے کے لیے کسٹم کا کوئی افسر بھی موجود نہ تھا، تاہم کارگو ٹرین کی بحالی سے کسٹم ایجنٹس اور ڈرائی پورٹ سے وابستہ مزدوروں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ کیمرامین افتخار حسین کے ساتھ رضوان نقوی، سٹی 42۔ پنجاب گروپ آف کالجز اور کورین NGO ہائی فرینڈ کے تعاون سے رنگا رنگ پاک کورین کلچرل فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ اس فیسٹیول میں دونوں ممالک کے طلباء و طالبات نے بہترین پرفارمنسز پیش کر کے اپنی ثقافتوں سے متعلق آگاہی دی اور شرکاء سے خوب داد وصول کی۔ عمران یونس کی یہ رپورٹ۔ پاک کورین کلچرل فیسٹیول کا انعقاد پنجاب کالج گلبرگ برانچ میں پنجاب گروپ آف کالجز اور کورین NGO ہائی فرینڈ کے تعاون سے کیا گیا۔ فیسٹیول کے انعقاد کا مقصد دونوں ممالک کے طلباء کو ایک دوسرے کے کلچر سے روشناس کرانا اور باہمی ہم آہنگی کو فروغ دینا تھا۔ فیسٹیول میں پنجاب کالج اور مختلف کورین کالجز کے 30 طلباء و طالبات نے شرکت کی۔ کورین طلباء و طالبات نے اپنی ثقافت سے متعلق ٹیبلوز اور قومی کھیلوں کا مظاہرہ کیا۔ کورین سٹوڈنٹس نے جہاں اپنی پرفارمنس سے داد وصول کی، وہیں پنجاب کالج کی طالبات نے بھی صوفیانہ کلام پیش کر کے دل مو لیے۔ فیسٹیول کے شرکاء کی بھرپور پذیرائی اور فرمائش پر دونوں ممالک کے طلباء و طالبات نے کئی ٹیبلوز پرفارمنس ایک سے زائد بار بھی پیش کی۔ تقریب کے اختتام پر پنجاب گروپ آف کالجز کی جانب سے کورین مہمانوں کو خصوصی تحائف دیے گئے اور کورین وفد کی جانب سے پنجاب کالج انتظامیہ کو سووینئر اور شیلڈز دی گئیں۔ کیمرامین مبشر جاوید کے ہمراہ عمران یونس، سٹی 42۔
तरह मुतासर हो रहे हैं। सफीर आला पंजाब अभी तक सेक्रेटरी हेल्थ की असामी पर तैनाती का फैसला नहीं कर सके। सेक्रेटरी हेल्थ के लिए कई नाम जेर गौर हैं, जिनमें वसीम मुख्तार चौधरी, बाबर हयात ताहिर भी शामिल हैं। ताहम जराए का ये कहना है कि हुकूमत पंजाब को कोई मुनासिब अफसर ही नहीं मिला जिसे सेक्रेटरी हेल्थ तैनात किया जा सके। सेक्रेटरी हेल्थ की खाली असामी होने से डॉक्टरों के सर्विस मामला, तकर्रुर तबादले, पॉलिसी इश्यूज मुतासर हो रहे हैं और महकमे की वर्किंग का ग्राफ गिरता जा रहा है। सीनियर कानूनदान सलमान असलम बट की बतौर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वजारत कानून और इंसाफ ने सीनियर कानूनदान सलमान असलम बट की अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जराए का कहना है कि नामवर कानूनदान मुनीर मलिक के मुस्ताफी होने से कबल ही वफाकी हुकूमत ने शरीफ फैमिली के केसेस की पैरवी करने वाले मॉडल टाउन के रिहायशी सीनियर कानूनदान सलमान असलम बट को अटॉर्नी जनरल बनाने का उसूली फैसला कर लिया था। अंदरून लाहौर से मिलने वाली कदीम तिजोरी पर महकमा औकाफ ने भी हद जतला दिया। सेक्रेटरी औकाफ ने तिजोरी के असूल के लिए डीजी वॉल्ड सिटी को खत लिख दिया है। महकमा औकाफ पंजाब के सेक्रेटरी साकिब अजीज के PRO डॉक्टर आफिर शहजाद के मुताबिक मस्जिद वजीर खान और उससे मुल्हिका तामीरात महकमा औकाफ पंजाब की मलकियत है, इसलिए 9 नंबर दुकान से मिलने वाली कदीमी लोहे की अलमारी भी महकमा औकाफ की मलकियत है। इससे कबल महकमा आसार कदीमा, वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी और दुकान नंबर 9 के मालिकान भी इस तिजोरी की मलकियत के दावेदार हैं। फिरदौस मार्केट चौक में टारगेट किलिंग का निशाना बनने वाले अली हुसैन कज़बाश की नमाज जनाजा सरवर रोड पर अदा कर दी गई। अली हुसैन कज़बाश को बुध की शाम नामालूम 2 मोटरसाइकिल सवारों ने सर पर गोली मारकर कत्ल कर दिया था। अली हुसैन की नमाज जनाजा सरवर रोड पर उनकी रिहाइशगाह पर अदा की गई। नमाज जनाजा में साबिक वजीर सलमान अली शाह समेत उनके अजीज़ व अकारिब ने शिरकत की। अली हुसैन कज़बाश को कबूतर वाला कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। पुलिस की बड़ी तादाद नमाज जनाजा की सिक्योरिटी के लिए मौजूद थी। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू मिर्जा नदीम मुनव्वर बेग की नमाज जनाजा खालिद मस्जिद कैलरी ग्राउंड में अदा कर दी गई, जिसमें चीफ कमिश्नर चौधरी सफदर और मुस्तफा अशरफ समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। ग्रेट बीफ के इनलैंड रेवेन्यू अफसर मिर्जा नदीम मुनव्वर बेग जॉगिंग के दौरान दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे, जिनकी नमाज जनाजा खालिद मस्जिद कैलरी ग्राउंड में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में साबिक DG खाबर रशीद बट, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू मुस्तफा सज्जाद हसन, कमिश्नर आसिम अहमद, जुल्कुनैन तिरमिजी, नदीम रिजवी, मोहम्मद असलम भट्टी, मुस्तफा भट्टी और दीगर ने शिरकत की। उनके अलावा यासिर पीरजादा, आफ्ताब आलम, इम्तियाज अहमद, डॉक्टर सरमद कुरैशी और दीगर ने भी शिरकत की। खाना फरंग जमहूरी इस्लामी ईरान के ज़ेरे तमाम अलहमरा में महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। सूबाई वजीर अता मोहम्मद मौनी का तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। रजा जैदी की रिपोर्ट। अलहमरा माल रोड पर होने वाली तकरीब का एहतमाम खाना फरंग ईरान ने किया था। तकरीब में सूबाई वजीर अता मोहम्मद मानिका, मोहम्मद हुसैन बनी असदी, अब्दुल रजा सुल्तानी, मौलाना अहमद अली कसूरी, मिस्कीन फैजुर रहमान दुरानी, मौलाना अली रजा नकवी, मौलाना बाकिर कल्लू, आगा हैदर मूसवी, मोहम्मद अली बलोच, नासिर शिराजी, मुफ्ती रमजान सियालवी, डॉक्टर रागिब नईमी और दीगर ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि दीन को समझने की जरूरत है, इख्तलाफात को खत्म करके इत्तेहाद को फरोग देना होगा। महफिल में हस्सान बिन हसन ने बारगाह रसूल में नात का हदिया भी पेश किया। जो इश्क़ मोहम्मद का तलबगार नहीं है। मुकर्रीन का कहना था कि शिया सुन्नी समेत सब मुसलमान इकट्ठे हो जाएं तो खोया हुआ उरूज हासिल कर सकते हैं। उनका कहना था कि बाज लोगों ने इस्लाम का लिबादा ओढ़कर इसे इतना नुकसान पहुंचाया है जिसका अजाला करना मुश्किल है। तमाम हुकूमत और उलमा कराम को चाहिए कि वो अवाम को इत्तेहाद की खुशियां समेटने दें। दुनिया के ये मसाइल सब के सब सियासी हैं, इनका दीन के साथ ताल्लुक नहीं है। ये वही सियासत है जिस सियासत के मुतालिक पहले दिन से ही हजरत इमाम खुमैनी ने मना फरमाया था। आपने फरमाया था दीन और सियासत एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। आलमी सतह की लादीनी, इबलीसी, तागूती, इस्तेमारी, इस्तेसाली कुव्वतें वो मुसलमानों के खिलाफ अल कुफ्रु मिल्लतुन वाहिदा वो इकट्ठे हो चुके हैं और वो हमा पहलू हमें घेरे में लिए हुए हैं। उलमा कराम का कहना था कि दीन और सियासत अलग अलग नहीं, जब दीन सियासत से अलग हो जाए तो कौमों का तशख्खुस पारा पारा हो जाता है। कैमरामैन मकसूद भट्ट और जामिन अब्बास के साथ रजा जैदी, सिटी 42। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन गुलबर्ग में सालाना महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया। तालिबात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर गुलहाए अकीदत पेश किए। मजीद बता रही हैं फिजा इमरान इस रिपोर्ट में।
दो आलम की वाली सारे नबी तेरे दर के सवाली शाहे मदीना शाहे मदीना। माह रबीउल अव्वल जश्न विलादत नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन गुलबर्ग में मुनक्किद होने वाली सालाना महफिल मिलाद में कॉलेज प्रिंसिपल फरजाना असलम, वाइस प्रिंसिपल फर्क गिलानी समेत असातिज़ा और तालबात की कसीर तादाद में शिरकत की। महफिल मिलाद में तालबात ने हजूर अक़दस में हदिया नाज़ पेश किया। नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। महफिल मिलाद में दुरूद सलाम भी पेश किया गया। सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। महफिल मिलाद के इख्तिताम पर मुल्की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। कैमरामैन मोहम्मद तारिक के साथ फिजा इमरान, सिटी 42। अल्लाह हम बुरे वक्त, बुरी घड़ी, बुरी तकदीर, आफाते अर्सी, समावी हादसों, जल्जलों से अल्लाह हम सबको तू पनाह मिले। इंतजार की सूली पर लटके मुसाफिरों की सुनी गई। शाहीन एयरलाइंस ने 4 जनवरी को रियाज जाने वाले 70 मुसाफिरों का सामान लाहौर से रवाना होने वाली परवाज के 300 से ज्यादा मुसाफिरों में 70 का सामान कम गुंजाइश के बायस लाहौर ही रह गया था। इंतजामिया के मुताबिक बड़े जहाज दस्तयाब न होने की वजह से सामान भिजवाने में ताखीर हुई। शाहीन एयरलाइंस की संगीन गफलत के खिलाफ मुसाफिरों और उनके अहले खाना का कहना था कि उनके प्यारे गुज़श्ता 12 रोज से एक ही लिबास पहनने पर मजबूर हैं, जबकि उनके इस्तेमाल की जरूरी अशिया और कागजात भी अभी तक रियाज नहीं पहुंचे, जिससे उन्हें सख्त मुश्किलात का सामना है। और पंजाब डेंटल अस्पताल में यंग डॉक्टर सरापा एहतजाज। सर्विस स्ट्रक्चर पर अमल दरामद समेत अस्पतालों के खराब तिब्बी आलात को ठीक करवाने और मुफ्त अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया। इलाज मुआवजा जुज़वी तौर पर मुतासर हुआ। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से पंजाब डेंटल अस्पताल में एहतजाज किया गया और रैली भी निकाली गई। YDA के उहदेदारान डॉक्टर उस्मान मान, डॉक्टर साकिब जावा, डॉक्टर राना इमरान समेत नौजवान डॉक्टर्स की बड़ी तादाद शरीक हुई। एहतजाज के शुरका ने सर्विस स्ट्रक्चर पर एक बरस से ज्यादा वक्त गुजरने के बावजूद अमल दरामद न होने पर शदीद एहतजाज किया। SSP ऑपरेशन राना अब्दुल जब्बार ने 8 थानों के SHOs के तकर्रुर तबादले के अहकाम जारी कर दिए हैं। SSP ऑपरेशन के दफ्तर से जारी होने वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक SHO बागबानपुरा कामरान जमान को तब्दील करके SHO शादबाग तैनात किया गया है। शादबाग से राना अहरम को तब्दील करके SHO TB सिटी, इंस्पेक्टर चौधरी इश्तियाक को SHO बागबानपुरा, आबिद रशीद को मुनावा से तब्दील करके SHO इस्लामपुरा और SHO लोअरमाल रफीउल्लाह को पुलिस लाइन रिपोर्ट करने का हुक्म दिया है। रंगमहल से आसिम रफी को तब्दील करके SHO लोअरमाल और सब इंस्पेक्टर मोहम्मद शबीर को SHO रंगमहल तैनात कर दिया है। क्वेलरी ब्रिज कैंट के ताजिरों ने मार्केट से मुतसिल रिहायशी कॉलोनियों की जानिब जाने वाले रास्ते बंद किए जाने के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। कारोबारी बरादरी ने टायर जलाकर क्वेलरी ब्रिज को हर तरफ की ट्रैफिक के लिए बंद कर रखा। अंजुम ताजिरान क्वेलरी ब्रिज मार्केट के सदर तैयब नैयर ने दीगर ताजिरों के हमरा एहतजाजी मुजाहरा करते हुए डिफेंस और कैंट की तरफ जाने वाली शाहराह को 2 घंटे के लिए बंद किए रखा। ताजिरों ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि कैंटोनमेंट बोर्ड इंतजामिया ने क्वेलरी ब्रिज मार्केट से मुतसिल रिहायशी कॉलोनियों की जानिब आने और जाने वाले रास्ते बंद कर दिए हैं, जिससे मार्केट में आने वाले ग्राहकों को दुश्वारी का सामना है। सिग्नल फ्री मंसूबे से मुतासिरा ताजिर फिरोजपुर रोड पर अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मियां महमूद रशीद के हमरा एहतजाजी धरना देंगे। लाहौर प्रेस क्लब में अंजुम ताजिरान एक्शन कमेटी फिरोजपुर रोड के सरपरस्ताना यूब खान मीयू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि फिरोजपुर रोड पर बनाए जाने वाला सिग्नल फ्री मंसूबा ताजिरों का मुआशी कत्ल है। उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब इस मंसूबे पर ताजिरों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने में नाकाम हो चुकी है, जबकि इस मंसूबे से मुतासिरा अफराद के लिए सिर्फ 1.5 अरब रुपए रखे गए हैं, जो कि नाकाफी हैं। डॉक्टर अहमद जावेद काजी की ज़ेर सदारत पोलियो के खतरे पिलाने के इंतजाम का जायजा लेने के लिए इजलास हुआ। इजलास में माइक्रो लेवल पर प्लानिंग मजीद मौसर करने की जरूरत पर जोर दिया गया। टाउन हॉल में होने वाले इजलास में तमाम असिस्टेंट कमिश्नर, टाउन के एडमिनिस्ट्रेटर्स, TMOs और हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में बादशाही मस्जिद के खतीब मौलाना अब्दुल खबीर आजाद भी मौजूद थे। DC लाहौर ने गुज़श्ता पोलियो मुहिम में पाई जाने वाली खामियों को ठीक करने की हिदायत की और उलमा कराम से दरख्वास्त की कि पोलियो के खतरे पिलाने के बारे में शऊर उजागर करें। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने उलमा कराम की जानिब से भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई।
डेंगू मुहिम तो खत्म हो गई, लेकिन डेंगू तदारुक के लिए दिन रात काम करने वाले 1100 से जायद वर्क चार्ज मुलाजमीन ताहाल तनख्वाहों से महरूम हैं। डेंगू तदारुक के लिए शहर के 9 टाउन्स ने एक माह के लिए 1100 से जायद वर्क चार्ज मुलाजमीन भर्ती किए थे। वर्क चार्ज मुलाजमीन ने जिला इंतजामिया के हमरा दिन रात काम किया। एक माह बाद मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया। जिला और पंजाब हुकूमत ने डेंगू के खिलाफ मुहिम खत्म कर दी है, लेकिन इन वर्क चार्ज मुलाजमीन की तनख्वाहें ताहाल अदा नहीं की गई हैं। वर्क चार्ज मुलाजमीन की भर्तियां 9 टाउन्स के TMOs ने की थी, लेकिन जब तनख्वाह देने की बारी आई तो मुलाजमीन को हेल्थ डिपार्टमेंट और जिला इंतजामिया की तरफ भेज दिया गया। डेंगू के मरीजों के इलाज में खिदमत अंजाम देने वाले जनरल अस्पताल के डॉक्टर, नर्सेज और अमले के लिए तारीफी असनाद वज़ीर-ए-आला के मुशीर बराए सेहत ख्वाजा सलमान रफीक का ये कहना है कि फरवरी से डेंगू की दोबारा सर्विलेंस शुरू कर दी जाएगी। 2011 से 13 तक डेंगू के मरीजों के इलाज मुआवजे के लिए खिदमत अंजाम देने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और अमले को असनाद देने के लिए पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में वज़ीर-ए-आला के मुशीर बराए सेहत ख्वाजा सलमान रफीक, प्रिंसिपल PGMI प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम हबीब बहरा, प्रोफेसर डॉक्टर गयासुन नबी तैयब, प्रोफेसर डॉक्टर आगा शब्बीर समेत सीनियर फैकल्टी मेंबरान, डॉक्टर्स, नर्सेज, मेडिकल के तलबा और अमले के अरकान शरीक हुए। पंजाब टीचर्स यूनियन के ज़ेरे एहतमाम दहशतगर्द के अज़ाइम खाक में मिलाने वाले नवी जमात के तालिब इल्म एतजाज हसन शहीद को खिराज अकीदत पेश करने के लिए वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें तलबा और असातिज़ा की कसीर तादाद ने शिरकत की। जनरल मोड़ पर वाक़े गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में पंजाब टीचर्स यूनियन पंजाब के ज़ेरे एहतमाम एतजाज हसन को खिराज अकीदत पेश करने के लिए वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक की क़यादत पंजाब टीचर्स यूनियन के मरकजी जनरल सेक्रेटरी काशिफ शहजाद चौधरी ने की। इस मौके पर तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। लाहौर बार के नौ मुंतखब सदर चौधरी इश्तियाक ने अपनी काबीना के हमरा जुडिशल कॉम्प्लेक्स फेज 2 के तामीराती काम का जायजा लिया। चौधरी इश्तियाक का कहना है कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स में 23 अदालतों की तामीर का काम 30 जून तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। लाहौर बार के सदर के हमरा नायब सदर गुलाम अब्बास सहर, सेक्रेटरी सलीम लादी, फसीम असलम हुंजा, ताहिर रियाज और पीर फरीद अल्लाह चिश्ती भी मौजूद थे, जिन्होंने तामीराती काम के हवाले से कॉन्ट्रैक्टर जाहिद कुरैशी से ब्रीफिंग दी। इस मौके पर सिटी 42 से बातचीत करते हुए नौ मुंतखब सदर चौधरी इश्तियाक ने बताया कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स 800 मिलियन की लागत से तामीर किया जा रहा है, जो 30 जून तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। और अब आपको बताएंगे कि फेडरल कोर्ट बिल्डिंग की मुरम्मत और तज़ीन और आइश का काम खटाई में पड़ गया। यहाँ काम करने वाले जजेस और वकला की इमारत की तामीर और मुरम्मत के मुतालबे की कोई सुनवाई नहीं हो रही। फेडरल कोर्ट बिल्डिंग विफाकी वजारत कानून के ज़ेर इंतजाम है। क़याम पाकिस्तान से कबल इस इमारत में FIA कोर्ट, कस्टम कोर्ट और 4 बैंकिंग कोर्ट, बैंक क्राइम कोर्ट और एंटी नारकोटिक्स कोर्ट काम कर रही हैं। बिल्डिंग की दीवारें फट चुकी हैं और जजेस के चैम्बर्स के अंदर दीवारों में जा बजा सुराख हैं। टूटी फूटी दीवारों में कीड़े मकोड़े परवरिश पा रहे हैं, जिससे जजेस, वकला और अदालती अमले को शदीद परेशानी का सामना है। मुल्तान रोड सब्जी मंडी में जगह जगह कीचड़ और गंदगी के ढेर इंतजामिया का मुंह चढ़ाने लगे हैं। आड़तियों का ये कहना है कि कई मरतबा जिला इंतजामिया और मुतल्लिका इदारों के अफसरान को मंडी की सूरत हाल से आगाह किया, लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। शहर के बेशतर इलाकों में मुल्तान रोड सब्जी मंडी से सब्जियां फराहम की जाती हैं। इंतजामिया और दीगर इदारे यहाँ से टैक्स तो वसूल कर लेते हैं, लेकिन यहाँ के आड़तियों और मकीनों को न तो सफाई की सहूलत मैसर है और न ही सीवरेज का मुनासिब इंतजाम है। वासा हेड ऑफिस में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में महफिल नात का इनेकाद किया गया, जिसमें मारूफ नात खानों ने बारगाह रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नातें पढ़ी। वासा हेड ऑफिस गुलबर्ग में होने वाली महफिल नात में मुफ्ती अब्दुल लतीफ और मौलाना शकूरी ने सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और सीरत बयान की, जबकि सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनाने के फजाइल व बरकत भी बताए गए। इदारा मिनाज हुसैन जोहर टाउन में मौलाना अकबर साकी मेमोरियल सोसाइटी तहरीक इबादत इस्लामी के ज़रिए तमाम रहमत लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, जिसके मेहमान खुसूसी ईरानी कॉन्सुलेट आगा बनी असरी थे। कॉन्फ्रेंस में सैयद अली रजा काज़मी, मौलाना जावेद अकबर साकी, हाफिज काजिम रजा नकवी, पीर सैयद हारून रजा गेलानी, पीर सैयद मोहम्मद उस्मान नूरी, MPA राहिला खादिम, अल्लामा इफ्तिखार हुसैन नकवी, मुफ्ती एजाज हामिदी, डॉक्टर अमजद चिश्ती और पीर ताहिर जंजानी समेत मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के अफराद और ख़वातीन की कसीर तादाद शरीक थी। PHA के ज़ेरे एहतमाम रबीउल अव्वल की मुनासबत से गुलशन इकबाल पार्क अल्लामा इकबाल टाउन में महफिल नात का इनेकाद हुआ, जिसमें अल्लामा निसार अहमद ने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुसूसी लेक्चर दिया। CBA यूनियन की जानिब से मुनक़िदा महफिल नात में अरकान सूबाई असम्बली ख्वाजा इमरान नज़ीर, रमजान सदीक भट्टी, DG PHA मियां शकील अहमद और जनरल सेक्रेटरी CBA हाफिज अबरार अहमद समेत मुलाज़मीन ने कसीर तादाद में शिरकत की।
दी एम स्कूल सिस्टम की सालाना तकरीब तकसीम इनामात में 100 से ज्यादा तलबा तालिबात में सर्टिफिकेट और मेडल्स तकसीम किए गए। शादरा में वाक़िअ दी एम स्कूल सिस्टम की सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद अलहमरा हॉल में किया गया। तकरीब में बैनुल अक़वामी क्रिकेट एम्पायर असद रऊफ और टेस्ट क्रिकेटर राना नवीदुल हसन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर प्रिंसिपल फयाज अहमद समेत तलबा तालिबात की बड़ी तादाद मौजूद थी। तलबा तालिबात ने फैशन शो, टैबलोज और खाके पेश किए, जिससे हाज़रीन बेहद महसूस हुए। तकरीब के इख्तिताम पर साल भर में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा तालिबात में मेडल्स और सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। डिफेंस एजुकेशन सिस्टम एक्सीलेंस कैंपस में बैनुल अक़वामी मज़बून नवीसी के मुकाबलों में पोजीशन हासिल करने वाले तलबा तालिबात के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। डिफेंस एजुकेशन सिस्टम एक्सीलेंस कैंपस में बैनुल अक़वामी मज़बून नवीसी के मुकाबलों में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा तालिबात के एजाज़ में मुनक़िदा तकरीब में डिफेंस एजुकेशन सिस्टम के एजुकेशन एडवाइज़र प्रेम रोज मेहतब ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर डिफेंस एजुकेशन सिस्टम एक्सीलेंस कैंपस के प्रिंसिपल शैला शाह, रूबी इफ्तिखार और सलमा अनवर भी मौजूद। इस पोलो टूर्नामेंट में गार्ड ग्रुप ने हमजा मुआज़ खान की शानदार हैट्रिक की बदौलत आर्मी ग्रीन को शिकस्त देकर फाइनल में रसाई के लिए अपनी पोजीशन मजबूत कर ली। लाहौर पोलो क्लब के ज़ेर एहतमाम पोलो क्लब जिलानी पार्क में जारी टूर्नामेंट के चौथे रोज गार्ड ग्रुप ने सख्त मुकाबले के बाद आर्मी ग्रीन को 5 के मुकाबले में 6 गोल स्कोर से हराया। पाते हुए टीम की जानिब से नौजवान खिलाड़ी हमजा मुआज़ खान ने शानदार हैट्रिक, जबकि तैमूर अली मलिक, हसन आगा और साकिब खान खाकवानी ने 1-1 गोल स्कोर किया। आर्मी ग्रीन की तरफ से मेजर जनरल असफंदियार पिटौदी ने 3 जबकि मेजर उमर मिन्हास ने 2 गोल स्कोर किए। और पाकिस्तान फर्स्ट यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेस्टिवल यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के नाम टीम ने सबसे ज्यादा पॉइंट्स हासिल करके जनरल ट्रॉफी जीत ली। यूसीपी की बास्केटबॉल और बैडमिंटन टीम ने फेस्टिवल में पहली, टेबल टेनिस, फुटसॉल और आर्म रेसलिंग में दूसरी और क्रिकेट में तीसरी पोजीशन हासिल करके सबसे ज्यादा पॉइंट्स हासिल किए और जनरल ट्रॉफी जीतने का एजाज हासिल किया। स्पोर्ट्स फेस्टिवल में जनरल ट्रॉफी जीतने पर प्रो रेक्टर यूसीपी प्रोफेसर डॉक्टर जफरुल्लाह खान ने खिलाड़ियों से मुलाकात करके उन्हें मुबारकबाद दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन चौधरी ज़का अशरफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से बहाल किए जाने के बाद अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। कज़ाफी स्टेडियम पहुंचने पर पीसीबी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुभान अहमद, डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट इंतखाब आलम, डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन ब्रिगेडियर साजिद, डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट जाकिर खान और दीगर ओहदेदारों ने चौधरी ज़का अशरफ का शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ज़का अशरफ का कहना था कि उनकी बहाली आज़ाद अदलिया की मरहून मिन्नत है। वाघा टाउन के ज़रिए तमाम पंजाब यूथ स्पोर्ट्स फेस्टिवल के दूसरे मरहले का इख्तितामी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। फेस्टिवल के मेहमान खुसूसी एमपी राना तजम्मुल हुसैन थे, जबकि बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले नौजवानों में कैश इनामात तकसीम किए गए। जल्लो मोड़ पर वाक़े पीएचए ग्राउंड में मुनक़िद होने वाले पंजाब यूथ फेस्टिवल में एमपीए मलिक हबीब अवान, एमएनए सोहेल शौकत बट, चौधरी रियाज नंबरदार, चौधरी शफाकत गुर्जर, मलिक अलीम आवान, अमजद गुर्जर, अफजल बशीर, मलिक इलियास, चौधरी फखर इस्लाम, मियां रेहान, मियां साकिब रशीद, टीएमओ वाघा टाउन, तनवीर इकबाल बलोच समेत दीगर ने शिरकत की। पंजाब यूनिवर्सिटी एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में टीचर्स फ्रंट ने क्लीन स्वीप करते हुए सदर समेत तमाम ओहदों पर मैदान मार लिया। डॉक्टर एहसान शरीफ 381 वोट लेकर दूसरी बार एएसए के सदर मुंतखब हो गए हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात 2014 में टीचर्स फ्रंट ने एकेडमिक अलायंस और फैकल्टी स्ट्रेंथनिंग फोरम के उम्मीदवारों को तमाम ओहदों पर भारी अक्सरियत से शिकस्त दी। महबूबुल हक ह्यूमन डेवलपमेंट सेंटर और लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के ज़रिए तमाम लेक्चर का इनेकाद किया गया। यूएनओ के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी डॉक्टर नौलेन और लम्स के वाइस चांसलर सुहेल नकवी ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। डिफेंस में होने वाले लेक्चर में यूएनओ के खुसूसी मशीर सैयद इकबाल रजा, सैयद बाबर अली, जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद इकबाल, शाहिद जावेद बुखारी, डॉक्टर एजाज नबी, शाहीन अतीकुर रहमान, डॉक्टर शाहिदा असफर समेत दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर बात करते हुए यूएनओ के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी डॉक्टर नौलेन ने कहा कि एशिया पैसिफिक खत्ते ने बहुत से शोबों में तरक्की जरूर की है, लेकिन अभी भी इस खत्ते के ममालिक में 60% से जायद अफराद ऐसे हैं जो गुर्बत की जिंदगी बसर कर रहे हैं। इदारा उलूम इब्लागियात पंजाब यूनिवर्सिटी और मौलाना जफर अली खान ट्रस्ट के ताउन से मौलाना जफर अली खान के 141वें यौम विलादत पर खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने सालगिरह का केक काटा। पंजाब यूनिवर्सिटी इदारा उलूम इब्लागियात में मुनक़िद होने वाली तकरीब में वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर मुजाहिद कामरान, मौलाना जफर अली खान के पोते मसूद अली खान, मजीद निजामी, मुजीबुर रहमान शामी, जफर अली खान ट्रस्ट के चेयरमैन खालिद महमूद, हफीजुल्लाह न्याजी, सज्जाद मीर, डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी, आमना मसूद जंजुआ, मारूफ सहाफ़ी और तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद में
शदीद धुंध के बायस लाहौर एयरपोर्ट मुसाफिरों के लिए दर्द सर बना रहा। दूसरी जानिब दिन भर अहम शख्सियात की लाहौर आमद का सिलसिला भी जारी रहा। मजीद बता रहे हैं नबील रजा मलिक। बुध की रात 2 बजे धुंध के बादल छा जाने की वजह से लाहौर एयरपोर्ट जुमेरात की सुबह 11 बजे तक तमाम परवाजों के लिए बंद रहा, जिससे मजमूई तौर पर 40 से ज्यादा परवाजें घंटों ताखीर का शिकार और मुसाफिर इंतजार की सूली पर लटके रहे। इस वक्त लाहौर एयरपोर्ट में धुंध है और जिसकी वजह से ये फ्लाइटें लेट हैं और वेदर रिपोर्ट के मुताबिक इंशाल्लाह 11:30 या 12 बजे के करीब मौसम क्लियर हो रहा है तो फ्लाइटें जो है ऑपरेट करना शुरू कर देंगी। दूसरी जानिब अहम शख्सियात की लाहौर आमद का सिलसिला जारी रहा। PIA की कराची से आने वाली परवाज PK 302 पर वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात के लिए 6 रुकनी कोरियन तजारती वफ्द समेत टर्किश एयरलाइन का 7 रुकनी अमला और हाई नून लेबॉर्ट्री के 100 मुलाजमीन भी लाहौर पहुंच गए, जिनका ढोल की थाप पर भंगड़े डालकर इस्तकबाल किया गया। उधर कौमी एयरलाइंस के पायलटों के मुंतखब सदर कैप्टन सुहेल बलोच PIA की परवाज PK 726 को खुद उड़ाकर रियाद से लाहौर पहुंचे और हुकूमती पॉलिसियों पर खूब बरसे। अगर आप वेट लीज पे जहाज लें और बाहर से पायलट्स मंगा के उनसे फ्लाई करवाएं और उनको पेमेंट भी डॉलर्स में करें तो मैं समझता हूँ ये मुल्क के साथ भी जाती है, एयरलाइन के साथ भी और पायलट्स के साथ क्या सारे एम्प्लॉइज के साथ जाती है। PIA की परवाज PK 653 पर वफाकी वजीर बराए अमूर कश्मीर बरजीज ताहिर लाहौर पहुंच गए हैं। इस्लामाबाद ही से आने वाली PIA की अगली परवाज PK 655 पर MD सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड आरिफ हमीद भी लाहौर पहुंचे। आरिफ हमीद का कहना है कि घरेलू सार्फिन का मुश्किल वक्त गुजर चुका, बारिशों के बाद सूरत हाल में मजीद बेहतरी आएगी। ओवर बिलिंग तो नहीं होती, सिर्फ फर्क ये होता है कि विंटर्स में थर्ड जो है ना स्लैब अंडर द टैरिफ जो समर्स में पहली और दूसरी स्लैब का बेनिफिट मिलता है, जब वो तीसरी स्लैब को टच करते हैं तो सारी कंजम्पशन थर्ड स्लैब में चली जाती है। PK 655 पर ही आलम दीन जुनेद जमशेद समेत सीनियर सहाफी फहद हुसैन, माहिर कानून अशतर औसाफ और वफाकी वजीर राना तनवीर भी लाहौर पहुंच गए हैं। कैमरामैन ख्वाजा फहीम के साथ नबील मलिक, सिटी 42। सूबाई वजीर कानून का कहना है कि इलेक्शन कमीशन जब हल्का बंदियां करवाएगा तो पहले से ज्यादा शिकायत मौसूल होंगी। सूबाई वजीर कानून ने अपने रिहाइशगाह पर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चौधरी परवेज इलाही के दौर के मंसूबे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुकम्मल किए हैं। उन्होंने कहा कि मेट्रो बस की मद में गरीब आवाम को सब्सिडी फराहम की जा रही है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि किसी भी सरकारी इमारत की तामीर के बजाय मुफाद आमा के काम हुकूमत की तरजीहात में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जब हल्का बंदियां करवाएगा तो पहले से ज्यादा शिकायत मौसूल होंगी। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने कहा है कि हुकूमत डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए अपना किरदार अदा नहीं कर रही। आफिया मूवमेंट के ज़ेरे एहतमाम रिहाई के लिए भरपूर तहरीक चलाएंगे। अमेरिका में कैद पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने आमना मसूद, जंजुआ और सैयद मोहम्मद जबरान के हमरा लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अमरीकी कैद में किए गए 11 साल का अरसा बीत चुका है, मगर अभी तक हुक्मरानों की जानिब से उनकी रिहाई के लिए खास इकदाम नहीं उठाए गए। वजीर तालीम राना मशहूद से टीवी न्यूज कैमरामैन एसोसिएशन के अहदेदारान ने मुलाकात की और अपने मसाइल से आगाह किया। नेशनल हॉकी स्टेडियम में होने वाली मुलाकात में टीवी न्यूज कैमरामैन एसोसिएशन के सदर इकबाल मलिक, सेक्रेटरी तनवीर हाशमी, जाहिद महमूद, अदनान हाशमी, नासिर मसूद, मुस्लिम लीगी रहनुमा इमरान गोराया, DG स्पोर्ट्स उस्मान अनवर भी मौजूद थे। इकबाल मलिक ने वजीर तालीम को न्यूज कैमरामैन ग्रुप्स की सियासत और उससे वर्किंग कैमरामैन के लिए पैदा होने वाले मसाइल से आगाह किया। वजीर तालीम राना मशहूद ने वफ्द को यकीन दहानी कराई कि लाहौर में काम करने वाले तमाम न्यूज कैमरामैन के साथ बराबरी का सलूक किया जाएगा और ग्रुप बंदी के खात्मे के लिए ठोस इक़दाम किए जाएंगे। मियां मुरीद हुसैन ने रऊफ इंटरनेशनल फॉरेक्स कंपनी के डायरेक्टर हारून की बहन डॉक्टर शाहीना हमायूं को 4 साल 7 माह कैद, जबकि वालिद डॉक्टर रशीद अहमद को 5 साल कैद की सजा सुना दी। एहतसाब अदालत में नए पंजाब ने रऊफ इंटरनेशनल के नाम पर फॉरेक्स कंपनी बनाकर सादा लोग को लूटने वाली कंपनी के डायरेक्टर डॉक्टर हारून, डॉक्टर शाहीना हमायूं और डॉक्टर रशीद अहमद के खिलाफ रेफरेंस पेश कर रखा था। दौरान समाअत अदालत ने डॉक्टर हारून को जुर्म साबित होने पर 14 साल कैद और 1 अरब 70 करोड़ 51 लाख रुपए जुर्माने की सजा दी। सारिफ अदालत के जज ख्वाजा हसन वली ने शादी की तकरीब में मेहमानों को नाकिस खाना फराहम करने पर फतेह मैरिज हॉल हरबंसपुरा के मालिक हाजी फतेह मोहम्मद को 47,500 रुपए हर्जाना दरख्वास्त गुजार को फौरी अदा करने का हुक्म दिया है। सारिफ अदालत में रेलवे कॉलोनी मुगलपुरा के अब्दुल अजीज ने फतेह मैरिज हॉल हरबंसपुरा के मालिक और मैनेजिंग डायरेक्टर को फरीक बनाते हुए 2 लाख रुपए हर्जाने का दावा दायर किया था। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक फतेह मैरिज हॉल हरबंसपुरा में वलीमे की तकरीब के दौरान उनके मेहमानों को नाकिस खाना फराहम किया गया।
लाहौर हाई कोर्ट ने खेल के मैदान को वाईमैक्स थिएटर में तब्दील करने के खिलाफ दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर वजीर आला पंजाब, डीसीओ लाहौर, DGLTA और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब के लिए तलब कर लिया है। जस्टिस आयशा मलिक की अदालत में दरखास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि LDA और जिला इंतजामिया ने अदालती हुक्म के बावजूद खेल के मैदान को वाईमैक्स थिएटर में तब्दील कर दिया, जो कि वाज़े तौर पर तौहीन अदालत है। शहर के कारोबारी उतार चढ़ाव पर एक नजर डालेंगे। फरीदा सेंटर के सदर हाजी फकीर मोहम्मद की जानिब से लाहौर ट्रेडर्स अलायंस के ताज रहनुमाओं के एजाज में इशाइये का एहतमाम किया गया। औरिगा सेंटर में होने वाले इशाइये में सरपरस्त आला लाहौर ट्रेडर्स अलायंस सलीम भट्ट, सदर सफदर भट्ट, सैयद अजहर अब्बास शाह, यूनुस बेग, खालिद जावेद, वकार हुसैन, मलिक कलीम, हाजी मंसूर हुसैन, जुमा खान, फयाज चौधरी, जफर खान, मियां असलम, जाहिद खान, ख्वाजा इनाम, आमिर मुगल, साजिद शाह, तैमूर भट्ट और मलिक निसार खोकर समेत दीगर ताज रहनुमाओं ने शिरकत की। एलाइड बैंक में नई स्टाफ यूनियन इत्तेहाद यूनियन का कयाम अमल में आ गया। रहनुमाओं आसिफ जहांगीर और दाना वारिस का दावा है कि वो चंद रोज में बैंक स्टाफ को दरपेश मसाइल के हल के लिए वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। एलाइड बैंक की यूनियन में इख्तलाफात के बाद बैंक स्टाफ की एक और यूनियन का कयाम अमल में आ गया है। एलाइड बैंक की नई इत्तेहाद यूनियन के रहनुमाओं आसिफ जहांगीर खोखर और दाना वारिस ने दावा किया है कि बैंक स्टाफ को दरपेश मसाइल के हल के लिए उन्होंने वजीर आजम मियां नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए खत लिखा था, जिसके जवाब में प्राइम मिनिस्टर हाउस ने चंद रोज में वजीर आजम से मुलाकात की यकीन दहानी करवाई है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से सराफा जैम MG एसोसिएशन के चेयरमैन अहमद अली चौधरी ने मुलाकात की और उन्हें GSP प्लस स्टेटस के हसूल में कामयाबी पर मुबारकबाद की। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि GSP प्लस स्टेटस का हुसूल पाकिस्तान के लिए एक संगे मील की हैसियत रखता है, जिससे न सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर बल्कि 3000 के करीब मुख्तलिफ शोबों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि यह पहला मौका है कि पाकिस्तान की तिजारती अहमियत को आलमी सतह पर सराहा गया है। अब ये पाकिस्तानी सनतकारों और ताजरों पर मुनहसर है कि वो इस मौके से कैसे भरपूर इस्तेफादा करते हैं। स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए सिटी